meters. And a mass 407.747 kg. Just a sec. Uniform bar of mass 407 07 decimal 707 747 decimal 747 kilos. kg is supported at its ends. Draw the SF Right. and BM curves to scale. Okay, fine. So we have a uniform load beam. That means the beam has a mass of its own. So this is a simple beam, and this is a uniform load beam with curves drawn along it. And this beam is supported at the ends. So she's supported at the ends. So this is like a light ship question. A ship having a light ship, no cargo on board. That's what this question is all about. So the first thing we do is get rid of the decimal. So W is equal to mg is equal to 407.747 into 9.81. So again, I've told you the ground rule. Slightly more than 400 multiplied by slightly less than 10, your resultant is going to be 4,000. And this will be 4,000 Newton, which I can shorten it and write it down as 4 kilonewton. Sir, can you please shift the camera a little up, upper part of the board, not visible? Yes, now it's okay. Is it okay now? Yes, this is perfect. Thank you. Okay. So the weight of the beam is 4 kilonewton. This 4 kilonewton, the weight, will be assumed to be acting at the center of the beam. This is the weight of 4 kilonewton, assumed to be acting at the center of the beam. So let's begin so therefore the reaction P and Q will act along the supports of the beam. So let us firstly begin with how many least number of points would you like to start this question with? Three. Three. Does everybody agree on this? That the least number of points I'd like to start this question with is 3. Yes, sir, 3. Okay. So I'm calling this point as A, I'm calling this point as B, and I'm calling this point as C. ABC. So the least number of points with which I can start this question is 3. Okay. I want to find out P and Q. So सॉरी अमित कॉल का माइक ऑन एंड सॉरी come again, please. Somebody's mic is on and it's creating disturbance. Okay.
Please silence your mics. Please silence your mics, everybody. So, so first we do is solve the forces. Sum of all the upward forces is equal to sum of all the downward forces. एक ही force है downward, that is 4 kilonewton. Supposing there was some cargo at this point delta, then that 4 plus 2 भी हो जाता है add. Whatever was that force. Now we take moments about which point? A. Correct. A or P, same thing. Taking moments about P. So P into lever of P about its own self, 0 plus Q into lever of Q from P, that is AC, is equal to, now downward forces, 4 into AB. So 0 plus Q into 10 is equal to 4 into 5. So Q is equal to 2 kilonewton. Substitute this value in number 1. Therefore, P is also equal to 2 kilonewton. So P का value 2 kilonewton. Q का value 2 kilonewton. My laptop has switched on. I'll just switch over from my mobile to laptop. Okay, Okay. I'll just switch on. Okay, sir. Yes, sir. Is it okay? Yes, sir. This B is exactly the midpoint, is it, sir? It was B mentioned is in the example. exactly the midpoint of 10 meters. So 5, 5. Okay. Because uniform load beam, the weight will be assumed to be acting at the center of the beam. Okay. It's uniform load. So this is uniform load. It's evenly spread along the length. But if I have to find P and Q, then I have to assume that 4 is acting at the center. Then only can I find out the value of P and Q. Oh, okay, sir. When will P and Q not be equal? When the load is not at center. Load is not at the center. When? When the When load the is not at concentrated center. load point is not at the center. And when will the load point not? When bar Then is it not will not be a uniform. uniform bar. Bar is not uniform. Supposing the bar is uniform,
सपोर्ट पॉइंट अलग हुआ था। सर इस पे लाइक एक्स्ट्रा वेट डालेंगे कहीं पे कोई भी पॉइंट पे Sir, when the bar is not horizontal. Okay. And the load is not at the center. If it Then is particularly mentioned that this load point is somewhere else, like last example we were doing, it is 2 meter and 4 meter, then it is different. okay. Or the support is somewhere here and this support is somewhere off centered. Then also सर आपकी वीडियो विजिबल नहीं हो रही वीडियो विजिबल नहीं है मेरे को मतलब Visible है sir. Sir, it is visible, sir. एक मिनट Amrit Pal, you'll have to unshare your screen. Amrit Pal, please unshare your screen. 1 minute sir, I'm doing it. Is it okay now? नहीं अभी भी नहीं. You'll have to unshare it. Otherwise, what you can do is you can leave and then you can rejoin again. फिर से कर लो. Yeah, now it's fine. Now it's fine. Now it's fine. Okay. Can you see my screen now? yes sir, visible now. Thank you. Okay. Yes, sir. All right. So basically, what I'm saying is, supposing this support was not at the ends, but it was अंदर, और ये भी थोड़ा सा अंदर होता कहीं अनइक्वल लेंथ पे, तो ये जो सपोर्ट है ये तो सेंटर पे ही रहता, ये तो जो वेट है ये तो से होता, लेकिन जो आपकी बीम है वो जो है, जो आपका ग्राफ बनता वो सिमेट्रिकल नहीं बनता, वो ऑफ सेंटर्ड होता. Point what I'm trying to make here is that in a uniform bar beam, the weight of 4 kilonewton is uniformly spread. However, जब मुझे P और Q को निकालना है तो मुझे ये 4Q सेंटर पे एज्यूम करना पड़ेगा लेंथ पे, और तभी मैं ये फोर्सेस रिजॉल्व कर सकता हूं जैसे मैंने किए. ठीक है, इज दैट ओके? Yes, sir. Yes, sir. इसके बाद मेरा ये, जब मेरा ये स्टेप खत्म हो जाता है P और Q का, ये मेरा 4 किलो न्यूटन गायब हो जाएगा. अब ये गायब हो गया और ये 4 किलो न्यूटन रिप्लेस हो जाएगा वेट पर मीटर, will be equal to 4 किलो न्यूटन divided by 10 meter is equal to 0.4 किलो न्यूटन पर मीटर से. ये समझ में आया मैंने क्या किया? Sir, please repeat. So the weight per meter, the total weight of the beam is 4, length of the beam is 10. So what is the weight per meter? Okay, so 4 by 10. But you remove the weight from B right now. So weight per meter is 4 divided by 10. That is 0.4 kilonewton per meter. यानी कि सर ये P and Q निकालने के लिए ही हमने एज्यूम किया है कि वो सेंटर पे बैठा है. That's right. Because मुझे P और Q की वैल्यू चाहिए थी. ओके सर, उसके बाद फिर मतलब P and Q की वैल्यू आ गई तो फिर हम इसको ऐसे रिजॉल्व करेंगे वेट पर मीटर वाला. करेक्ट, वेट पर मीटर वाला मतलब एक मीटर की अगर मैं सेगमेंट्स लेता हूं तो उसका मेरा वेट बीम का 0.4 किलो न्यूटन पर मीटर है, और टोटल जो है 0.4 मल्टीप्लाइड बाय 10 यानी कि 4 किलो न्यूटन का है टोटल वेट. अब
चलते हैं SF की तरफ। हाँ जी, which theory would you like to use? 2-point theory. So 2 point. 2 point. 2 points. 2 point. Okay, 1 mm to the left, 1 mm to the right. 2 पॉइंट ले लिए मैंने। लेफ्ट के लेफ्ट पे 0. 0. एवरीबॉडी एग्रीज ऑन दिस। Yes, sir. राइट के लेफ्ट पे +2. +2. +2। ये समझ में आ गया सबको? Yes, sir. ए में किसी को कोई तकलीफ तो नहीं? So SF at A will be changing from 0 to +2. मैंने 2 पॉइंट लिए, 1 mm to the left, 1 mm to the right. लेफ्ट के लेफ्ट पे 0, राइट के लेफ्ट पे +2 ऊपर एक्ट कर रहा है। So A is okay with everybody. अब मैं ब्रावो पे आ रहा हूं। कौन सी थ्योरी लगेगी? Single 2 point. सिंगल पॉइंट थ्योरी Yes, sir. लगेगी। Single point theory, sir. I'll repeat once again. Is it a supported point? नहीं है। No, sir. Is it a concentrated load point? नहीं है। No, sir. तो इसका मतलब है सिंगल पॉइंट। Is this okay? Yes, sir. अब सिंगल पॉइंट थ्योरी है। ब्रावो के लेफ्ट पे कौन से फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं? एक तो एक्ट कर रहा है +2 और एक फोर्स और एक्ट कर रहा है माइनस वेट ऑफ AB। ये जो AB का वेट है ये डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। Yes, sir. जो ये वेट ऑफ AB है ये इस AB के मिड लेंथ पे यहां पे एक्ट कर रहा है और डाउनवर्ड है तो माइनस है। So ये +2 to -2. ये समझ में आया कि नहीं? Yes, sir. अब सर ये इसको समझ में आया सर। आप अभी भी ये पॉइंट बी को सेंटर में माने हुए हो ना सर? हाँ B बट तो हमें सेंटर ही दिया चल ही रहा नहीं क्या कभी। है। B is any point at the center। वो तो मैंने शुरुआत करी थी ना, मुझे चूज करने थे नंबर ऑफ पॉइंट से, तो उसका मैंने रूल लिखा हुआ है कि कौन कौन से पॉइंट्स मैं ले सकता हूं। जरा वो रूल पढ़ो। ओके। मेरे को सपोर्टेड पॉइंट लेना है, मुझे कॉन्सेंट्रेटेड लोड पॉइंट लेना है एंड मुझे मिड पॉइंट ऑफ द यूनिफॉर्म लोड बीम लेना है। ये मेरा मिड पॉइंट ऑफ यूनिफॉर्म लोड है, तो ये तो मुझे लेना ही है। अब इसको रिजॉल्व करते हैं। +2 वेट ऑफ AB 0.4 into 5 meter is equal to +2 minus 2 is equal to 0। तो ब्रावो का शेयरिंग फोर्स समझ में आया कि नहीं? वेट ऑफ AB कितने मीटर लेंथ है AB की? 5 मीटर। वेट पर मीटर क्या है? 0.4। तो 0.4 into 5 कितना बना? -2। तो सर ये हमेशा 0 रहेगा क्या सेंटर पे सर, अगर हम इसे सेंटर पे मान के चलेंगे इसको? नहीं, इस केस में आ रहा है, हमेशा नहीं होगा। इस केस में आ गया बिकॉज इसके वेट्स ऐसे हैं।
बट जैसे आप अभी स्टार्टिंग में बोला था कि सर फिर हम इसे एज्यूम तो यही करके चलेंगे ना कि वो बी सेंटर पॉइंट होगा अगर हाँ। ए सी लेंथ होगी हाँ। यूनिफॉर्म बार पे। हाँ। ओके ओके। तो सर अगर सेंटर एज्यूम करके चलेंगे तो सर उस पर जीरो नहीं आना चाहिए सर फिर बाद में और हर भाई बारी। कहीं और, भाई नहीं, हर क्वेश्चन अलग अलग होगा। कहीं में यहाँ पे कोई कार्गो होगा, यहाँ पे कुछ कार्गो होगा, और भी तो कार्गोज होंगे। हाँ नहीं सर वो ठीक है, मतलब अगर 3 पॉइंट लेके चलेंगे, मैं उसमें बोल रहा था कि फिर बी अगर सेंटर पॉइंट लेके चलता तो जीरो आएगा ना सर फिर उसमें। हाँ। हाँ, अगर 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 लेके चलते तो ये ब्रावो है। अब आई वॉन्ट यू टू कैलकुलेट चार्ली योरसेल्फ। So -2 to 0. Okay, others? -2 to 0. -2 to 0. Okay. -2 to 0. Okay. So basically मैं 2 point theory लगा रहा हूँ. 1 mm to the left, 1 mm to the right. Sum of all the forces to the left of the left point +2 minus weight of AC. अब राइट पॉइंट पे आ जाओ. लेफ्ट ऑफ राइट पॉइंट एक +2 और ऐड हो गया. +2 माइनस WAC और +2. ये P है, ये Q है. तो सर ये समझ में नहीं आया। कौन सा नहीं समझ आया? सर आपने बोला ना ये P है ये Q है। अच्छा, ओके. ये लेफ्ट ऑफ लेफ्ट पॉइंट, ये +2 जो है ये क्या है? ये P तो है. यस सर। तो ये एक +2 हो गया. यस सर। और माइनस वेट ऑफ AC हो गया. वेट ऑफ ओके AC. सर। ओके अब सर। राइट वाले पॉइंट पे आ रहा हूं. इसके लेफ्ट पे एडिशनल फोर्स कौन सा है? एक ये वाला +2 और ऐड हो रहा है. सिर्फ क्यू. यस सर। तो +2 माइनस WAC और +2. ये P को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये Q को रिप्रेजेंट कर रहा है. ओके सर। सो +2 minus 0.4 into 10 is equal to -2. +2 minus 0.4 into 10 +2 is equal to 0. So SF at Charlie is said to be changing from -2 to 0. तो 4 होगा ना? हाँ जी, 0.4 क्या हुआ? हो जाएगा ना वो? कौन सा 4 हो जाएगा? 0. C वाले में हाँ, +2 -4 +2. +2 0 है नहीं। हाँ, वो 0.4 into 10 is 4 only ना. ओके. This is basically 4 only ना. Weight of AC is 4. So 0.4 into 10 कर दिया या 4 कर दिया, एक ही बात है. तो +2 minus 4 +2 is equal to 0. Is it okay? Is the SF okay with everybody? Okay, sir.
यस Alright. सर, इसको एग्जाम में इसी तरह रिजॉल्व करके दिखाना पड़ेगा। ये जो जो बोर्ड में आपको नजर आ रहा है बस यही सेम चीज आपको रेप्लिकेट करनी है। ओके सर। ऑलराइट, अब बीएम की बारी है। बीएम की याद रखना है, सिंगल पॉइंट थ्योरी होगी एंड जो भी शेयरिंग फोर्सेस यूज किए हैं उनको उनके रिस्पेक्टिव लीवर से मल्टीप्लाई करना है। तो सिंगल पॉइंट थ्योरी से चालू कर रहा हूं। ए के लेफ्ट पे बेंडिंग मोमेंट सर 0। 0, ये तो सबसे आसान है। अब ब्रावो पे जो भी ब्रावो में फोर्सेस थे मेरे, ये मेरे फोर्सेस थे। इंडिविजुअली ये फोर्सेस को इनके लीवर से मल्टीप्लाई करूंगा तो +2 ब्रावो +2 का लीवर क्या है? एबी। एग्रीड और नो? +2 यस सर 5। का लीवर, ये रहा मेरा फोर्स, शेयरिंग फोर्स इनटू लीवर एबी। दूसरा -WAB इंटू AB/2, मतलब ये इसका लीवर है AB/2। सर ये नहीं समझ आया सर, एक बार बीएम का बता देंगे स्टार्टिंग से कैसे हो रहा है सर? तो पीएम बेसिकली इज, हमने डेफिनेशन लिखी थी, शेयरिंग फोर्स इनटू लीवर। तो ए पे तो 0 है, वो 0 ही है, तो वो तो उसमें कोई तकलीफ नहीं है। ब्रावो में ये मेरे शेयरिंग फोर्स हैं, इनको इनके रिस्पेक्टिव लीवर से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। तो प्लस ब्रावो के लेफ्ट पे ये +2 एक्ट कर रहा है, लीवर क्या है? AB। फिर -WAB एक्ट कर रहा है, ये डाउनवर्ड, इसका लीवर क्या है? AB/2। ऊपर पे हो जाएगा। So +2 into AB is 5 minus weight of AB। weight of AB मैंने निकाला था 0.4 into 5 2 2 into AB/2 5/2 यानी कि 2.5 +10 minus 5 is equal to +5। What will be the unit? सर WAB का लीवर AB/2 किलो न्यूटन। हाँ जी, न्यूटन मीटर। किलो न्यूटन। किलो न्यूटन मीटर। सर न्यूटन मीटर हो, न्यूटन तो सर किलो इतना, किलो मीटर सर किलो। तो इसमें किलो न्यूटन आ किलो जाएगा, न्यूटन मीटर। तो इस उसमें न्यूटन मीटर था, इसमें किलो न्यूटन मीटर हो जाएगा। तो बेसिकली क्या है कि यूनिफॉर्म बीम में जब हम वेट ऑफ बीम लेते हैं तो वो WAB होता है, तो उसका जो लीवर होता है हमेशा वो लेंथ डिवाइडेड बाय 2 होगा। तो जो भी लेंथ हमने ली AB, तो AB/2। सर ये AB/2 समझ नहीं आ रहा सर ये। भाई जो भी सेक्शन जो मैंने लिया, एक उसका वेट है बीम का AB, तो वो कहां पे एक्ट करेगा? जो वो वेट ऑफ AB है सेंटर। उसके सेंटर में एक्ट करेगा ना, जो लेंथ। तो उसके सेंटर में ले रहे हैं।
सर लास्ट एग्जांपल पे हमने बीएम ऐसे कैलकुलेट नहीं किया था। इसमें थोड़ा लास्ट एग्जांपल में यूनिफॉर्म नहीं था ना, लाइट बीम था। यस सर। तो इसमें यूनिफॉर्म में हमें अलग अलग वेट्स को ऑब्जॉर्व करना है इस तरह। हाँ, दैट्स राइट। सर अगर इसके ए बी के बीच में एक और पॉइंट, महेंद्र सिंह, कैन यू हैव टू अनशेयर योर स्क्रीन प्लीज। महेंद्र सिंह, प्लीज अनशेयर योर स्क्रीन। हाँ जी सर, अगर ए बी के बीच में कोई पॉइंट होता है या बी सी के बीच में कोई पॉइंट होता तो उस पॉइंट पे लीवर कैसे निकालते सर? ओके, मैं भी आता हूँ, पहले इसको खत्म कर लेता हूँ। तो डिपेंड करता है कौन सा पॉइंट है, क्या मैंने वो कॉन्सेंट्रेटेड लोड पॉइंट लिया है या वो जस्ट एनी अदर नॉर्मल पॉइंट है। अगर तो वो नॉर्मल पॉइंट है और मैंने डेल्टा लिया है ये पॉइंट, तो दैट उसके लेफ्ट पे होता +2 माइनस WAD और BM बनता उसका -WAD इंटू AD/2। मतलब बी का रोल नहीं आता था सर उसमें ना। जैसे जैसे मैं आगे जाता जाऊंगा फ्रॉम हैच नंबर 5 और टैंक नंबर 5 एंड आई एम गोइंग टू आगे, तो उसका मेरा प्रोपोर्शनेट लाइट शिप वेट ले रहा है। ये बेसिकली मेरे लाइट शिप वेट है। और लाइट शिप वेट मेरी जो लाइट शिप की वो जितनी भी प्रोपोर्शनेट लेंथ है उसके सेंटर पे एक्ट करेगा। सर वो उस टाइप का एक क्वेश्चन करेंगे ना सर, उस टाइप का तो समझ आ जाएगा सर सब आराम से। या दैट्स राइट। सर आपने डेल्टा पॉइंट बताया, उस केस में ऐसे रहेगा ना, WAD इंटू AD/2 हो जाएगा। ओके, ठीक है सर, थैंक यू। अब मैं चार्ली पे आ रहा हूं। चार्ली पे जो ज्यादा फोर्सेस हैं लेफ्ट और राइट में से ज्यादा वाले लूंगा और उनको उनके रिस्पेक्टिव लीवर से मल्टीप्लाई करूंगा और मेरा आंसर 0 आना चाहिए, ये मुझे पता है क्योंकि मेरा BM 0 होना चाहिए। वो मेरा रिजल्टेंट आंसर आना चाहिए, वो मेरा चेक बनेगा। तो स्टार्ट करो, +2 इंटू लीवर AC 10 माइनस WAC इंटू AC/2 +2 इंटू 0। ये इक्वेशन समझ आई कि नहीं? यस सर। इस इक्वेशन में किसी को तकलीफ? +2 मल्टीप्लाई बाय 0, ये मल्टीप्लाई बाय 0 सर प्लीज बता दो। मैं चार्ली पे निकाल रहा हूं, ये मेरा चार्ली पॉइंट है। इसके जितने भी फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं उनको उनके लीवर से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। तो पहले तो ये मेरा +2 आ गया, ये वाला। तो +2 इसका लीवर बन गया AC, तो AC वेट ऑफ AC लिया मैंने, वो AC/2। तो ये मेरा यहाँ पे -WAC है ये, और डिस्टर्बेंस आ रही है। नितिश प्लीज साइलेंस योर माइक। नितिश कौशल प्लीज साइलेंस योर माइक। ओके, सो ये मेरा WAC एक्ट कर रहा है और ये मेरा AC/2 लीवर है। तो ये मेरा -WAC सेंटर पे एक्ट कर रहा है, लीवर एक्ट कर रहा है AC/2। अब चार्ली पे एक +2 भी एक्ट कर रहा है ऊपर, इसका लीवर अबाउट इट्स ओन सेल्फ
अब इसको रिजॉल्व कर दो, +2 into 10 minus weight of AC 4 था, 10/2 plus 0. Answer will be 0. So I am on the right track. मेरी जो इक्वेशन जितनी भी चल रही थी वो ठीक चल रही थी. अगर यहाँ पे मेरा आंसर 0 नहीं आता है, इसका मतलब है जो इससे पिछली वाली मेरी इक्वेशन थी वो भी गलत होगी. तो आई नीड टू डबल चेक. हाँ जी, नाउ एनी डाउट्स? SF में या BM में? सर ये जो SF निकाला है हमने इन केस ऑफ B, ये जो सेकंड आपने निकाला हुआ है इसमें आपने वेट पर मीटर लेंथ लिया हुआ है, राइट, 0.4 किलो न्यूटन. तो इसको हम डायरेक्टली नहीं कर सकते सर, क्योंकि हमारे पास जो 10 मीटर लेंथ है उस पे अगर हमारा 4 किलो न्यूटन का वेट आ रहा है तो डायरेक्टली बी पे 2 किलो न्यूटन ही आएगा डायरेक्ट. तो इसमें ये स्टेप डालने की जरूरत है सर, निकालने की जरूरत है उसको वेट पर मीटर लेंथ पे. हाँ, क्योंकि आगे जाके बिकॉज ये यूनिफॉर्म लोड है सर. ये आगे जाके जब मैं कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस करूंगा ना तो ये तब उसकी वैल्यू आपको पता चलेगी, क्योंकि आगे जाके कॉम्प्लिकेटेड आ रहे हैं क्वेश्चंस. ओके. तो हमें अभी सही आदत डालनी है. ये पर वेट पर मीटर वाला फंडा जो मैं कर रहा हूँ ना, इसकी आदत अभी से ही डाल लो, क्योंकि एज वी गो अहेड द क्वेश्चंस विल बिकम मोर कॉम्प्लिकेटेड. तो यू शुड नो कितने मीटर लेंथ पे आप हैंडल कर रहे हो वेट को, इसलिए मैं ये कर रहा हूँ. यस सर. ओके सर, गॉट इट. ठीक है. और कोई और डाउट? क्लियर है ये बिल्कुल? यस सर, क्लियर. यस सर. ऑलराइट. तो अब हम आ जाते हैं प्लॉटिंग पे. तो प्लॉटिंग करते हैं. सेम स्टोरी, SF कर्व से शुरू करेंगे. इसमें ये W जो नीचे इक्वेशन है सर, WAC जो है सर इसमें, ये सर यही वाला, जैसे 0.4 होना चाहिए सर, ये बिकॉज पर मीटर तो 0.4 है. नहीं, वेट ऑफ AC क्या है? 0.4 into 10 करता तो मैं क्या आता मेरा? 4 आता ना, तो इसलिए मैंने उसको एक स्टेप जंप कर दिया मैंने. नहीं तो मैं यहाँ पे 0.4 into 10 लिखता. वेट ऑफ AC बातें हो रही हैं. ओके सर, ठीक है सर. ठीक है. सो अब मैं SF कर्व बना रहा हूं. X एक्सिस स्केल 10 meters is equal to dash centimeter. Y एक्सिस मेरा मैक्सिमा क्या है? +2. मिनिमा क्या है? -2. So 2 किलो न्यूटन is equal to dash centimeter. A, B, C +2 -2. A 0 to +2, 0 to +2. B 0, B 0. C -2 to 0, C -2 to 0. अब ज्वाइनिंग की बारी आ गई. A 0 to +2, A to B +2 to 0, B to C 2 -2, and C -2 to 0. ये बन गया मेरा SF curve. Is SF curve okay with everybody? यस सर. यस सर. Okay. अब बारी आई मेरी BM कर्व बनाने की. सर ये SF कर्व में जो B है +2 to 0 एक हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं होगी सर? B पे वैल्यू क्या है?
बी पे 0 है, बट ए टू बी अपना ए की वैल्यू क्या है? सर ए की है +2। नहीं, ए की वैल्यू क्या है? 0 to +2 0 to +2 है। 0 0 to +2। तो ए की वैल्यू 0 to +2 जा रही है। अब +2 पे आके रुक गई है ना। अब मैं ए टू बी जा रहा हूं तो मैं +2 से 0 जाऊंगा ना। भाई ए पे मेरी वैल्यू 0 to +2 है। वो समझ गया सर, एक आधा समझ गया सर, 0 to +2 गए। हाँ, तो फिर बी मेरे पे तो गए मेरे सर +2 +2 से 0। तो जो मेरी लास्ट वैल्यू ऑफ ए थी वो +2 थी। वहां से मैं बी की तरफ जाऊंगा तो मैं कहां से कहां जा रहा हूं? +2 से 0 जाऊंगा ना। ये सर वो पीछे सर जो पीछे वाले क्वेश्चन में उसमें सर अभी हम ए से गए थे, सी जो 0 आ रहा था, तो हमने एक सर ए टू सी एक हॉरिजॉन्टल लाइन मार के फिर सी पे फिर ज्वाइन वहां पे किया था सी ना। की वैल्यू क्या थी? सी की वैल्यू क्या थी? स्टार्टिंग वैल्यू क्या थी सी की? सी वाज अ 2 पॉइंट थ्योरी। सी की सर +82 -40 थी। ए की थी सर 0 to +80 और सी की थी +82 -40। तो फिर उसमें सर ए मैंने हॉरिजॉन्टल की लास्ट लाइन और बी की और सी की फर्स्ट वैल्यू को ज्वाइन कर रहा था ना मैं। हाँ ये सर, तो वो दोनों सेम थी ना। इसमें भी तो सेम ही है सर। अरे क्या बात कर रहे हो? ए की लास्ट वैल्यू क्या है? +2 सर, 0 to +2 ए की। तो ए की लास्ट वैल्यू क्या है? +2 है। इनिशियल वैल्यू ए की 0 है, ए की लास्ट वैल्यू +2 है। बी की ए की वैल्यू है। ये सर +2। नहीं, बी की वैल्यू 0 है। हाँ +2 to 0 है बी की वैल्यू। तो नहीं, ओनली 0। ओनली 0 है भाई। बी इज अ सिंगल पॉइंट थ्योरी। सिंगल पॉइंट है ना सर, सिंगल पॉइंट। ओके 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 ठीक है ठीक है, समझ गया, सिंगल पॉइंट लगाना होगा। Single ओके ओके ठीक है सर, इस तरह से। ओके, अब मैं बीएम पे आ रहा हूं। मेरा मैक्सिमा क्या है? +5। मिनिमा क्या है? 0। दैट मीन्स मेरी हर एक जो मेरा कर्व बनेगा अबव द बेसलाइन होगा। यस सर। ट्रायंगल बनाएगा। बीएम कर्व बी पे क्रॉस कर रहा है तो इंटेंजिनियस हाई। एक्स है 10 मीटर इज इक्वल टू डैश सेंटीमीटर। वाई एक्सिस 5 किलो न्यूटन मीटर इज इक्वल टू डैश सेंटीमीटर। ओके, सो बेसलाइन को नीचे ले लिया मैंने क्योंकि सारा का सारा कर्व ऊपर है। अगर ये माइनस होता तो फिर मैं बेसलाइन को ऊपर लेता, सारा का सारा कर्व नीचे होता। ए बी सी +5। अब शुरू हो जाओ। ए 0, ए 0, बी +5, बी +5, +5, सी 0, सी 0। अब गोल्डन रूल चाहिए मुझे। So let's go back to our golden rules for plotting a curve. क्या था वो? I think point number 6 था या 7? 8 था। 8 था ना। अब 8-2 पे आ जाओ। Straight line will rise. Right. So अब 8-2 पे आ जाओ। So write down area under a straight line at an angle to the base will be a curve. सर ये किसके साथ लिखना है सर? ये हम गोल्डन रूल लिख रहे थे ना जहाँ पे। हाँ ये 8 का सेकंड आएगा सर। 8 का सेकंड। हाँ जी सर, एक बार रिपीट कर देंगे क्या है? Area under a straight line
at an angle to the base will be a curve. The curve will concave up within bracket, spoon up if the straight line rises to the right. सर कॉन्केव अप के बाद Within bracket, spoon up यानी कि चम्मच up. If the straight line rises to the right. And the curve will concave down within bracket, spoon down. If the straight line falls to the right. Okay, let's try to understand. Between A and B, I have a straight line falling to the right. Between A and B, it has to be a curve. It cannot be a straight line. The curve falling to the right, the curve has to chammach down, concave down, banana down, chammach down. This is chammach down. Chammach up, matlab this is chammach up. Okay. So the concavity of the chammach will determine whether this will depend on the straight line, because the straight line between A and B is falling to the right, so chammach down. Between B and C, again falling to the right, again chammach down, concavity down, chammach down. So this becomes your BM curve. ये चम्मच अप और चम्मच डाउन falling to the right किसके ये falling to the right between A and B to the right कहाँ जा रहा है ये लाइन ऐसे जा रही है गिर रही है it's a straight line falling to the right. Okay, sir. So means falling to the right means right of A. Right of A, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही. So this chammach business will determine the concavity, concave up or concave down. So supposing I give you a SF curve which looks like this, like this, like this. Can you tell me the shape of the BM curve using this rule? Concave up. This is rising to the right, so chammach Yes, up. concave up. Between this Concave and this, up. again chammach up. Concave down. Yeah. Up. Yeah. A, B, C, D, E, and F. So between A and B, Concave up. Concave up. it has to be chammach up. A and B. And between B and C, again chammach up. But at B, I must reach an instantaneous max also. My BM must reach an instantaneous max at B. Correct? And at delta Yes, sir, also. because it's crossing the line. Because SF is cutting it. So this is going downward, negative direction. So I have to go chammach up. So chammach up. This is chammach up.
This would have been Chammach down. Between B and C, again Chammach up. Yes, sir. So max. B पे max आ गया, so Chammach up. Between C and D, Chammach down. Down with peak at D. Chammach down, peaking at D. Now Concave down. between E and F, between D and E, sorry, Chammach down. Chammach down. No, between D and E, Chammach down. And between E and F, Chammach up. आधा रह जाएगा. And then finally landing up at 0. This would be the curve for this kind of a vessel. Without calculating the values, just basis this golden rule, I managed to draw the BM curve. सर ये E से पास नहीं होगा BM कर्व में. हाँ जी. Excuse me, sir. Okay, I have one doubt. ये जो पहला एग्जांपल है जिसमें आपने ये कर्व ड्रॉन किया है, you said that कि it will be concave down if straight line falls to the right. Correct. तो जब हम A से B का केस लेते हैं तो straight line is falling down. Correct. So ये concave down है. So this is Chammach down. this is concave down. Okay. This is Chammach down. And same B से C के बीच में भी it is again falling down. So ये भी Chammach down. Okay, got it. What I'm trying to say is, this is Chammach down. This is Chammach up. This is also Chammach down. This is also Chammach up. These both are up. Got it. These both are down. Basically, you got to see the concavity of the curve of the Chammach, of the banana, and then you try to judge. एंड सर इसके जो मैक्सिमा होंगे वो 0 पे होंगे, मतलब जैसे उस केस में भी बी पे था मैक्सिमा और इसमें भी सर बी एंड डी पे मैक्सिमा आ रहा है. ये इस पे भी ये यहाँ पे 0 है, ये मैक्सिमा जा रहा है. सिमिलरली यहाँ पे भी ये अपना मैक्सिमा कर रहा है, ये अपना मैक्सिमा कर रहा है, ये यहाँ पे ये अपना यहाँ पे मैक्सिमा मार रहा है. एफ पे भी सर फिर ये मैक्सिमा होना चाहिए ना. सर सी और ई पे नहीं होगा कुछ सर. ई पे कट करके नहीं, सी और ई का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है. मतलब उनका कोई रोल नहीं पड़ेगा सर मैक्सिमा के लिए. उनका कोई मैक्सिमा का रोल नहीं है. तो जो हमें बस वो ध्यान देना सर, जो जिस पे लाइन कट रही है उन पे मैक्सिमा रखना है हमें बेसिकली. बस. ओके सर, वो मुझे ध्यान दें. और उसके बाद हमें नीचे या ऊपर लेके जाना है सी पॉइंट के लिए जहाँ पे भी जा रहा होगा. बस. और सर ई में आपने लाइन नहीं का, हमें ई में नहीं उसको मतलब काटना, जो नीचे ग्राफ ना है. नहीं, ई का जो पॉइंट है बस एक ये पॉइंट है कोई जिसकी कोई वैल्यू आ रही है, पॉजिटिव वैल्यू कुछ आ रही है. और एफ में जोड़ देंगे जाके. और एफ पे बिकॉज एफ पे जाके वो 0 होना है बीएम ने, इसलिए ये मैंने कॉम्प्लिकेटेड बना दिया थोड़ा सा. तो ये ज्यादा बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है आपको, बट अगर मैं इसको सिंपल सा बनाता तो देन इट वुड हैव बीन सिंप्लीफाइड. दिस इज अ सिंपल वन. ये मैंने कॉम्प्लिकेट कर दिया थोड़ा सा. हाँ जी सर, कॉम्प्लिकेट हो सर. बट बस एंड में सर ये बता दें सर, इसमें जो एफ है उस एफ पे नीचे हमें जोड़ना था उसको के अगर उसका भी मैक्सिमा तक लेके जाते अगर वो कट रहा होता कि नीचे जोड़ देंगे यहाँ पे. एफ नहीं, एफ पे 0 आना चाहिए जहाँ आना चाहिए. वो एंड पॉइंट है मेरा, वो मेरा एंड पॉइंट है. ये भी और क्लियर हो जाएगा. खाली ये वाला जो रूल है ये वाला से थोड़ा समझना जरूरी है. ठीक है, लेट अस टेक अ ब्रेक हियर. थोड़ा सा हेवी हो गया एंड वी विल डू अ रिवीजन ऑफ दिस टुमारो अगेन. फिर से करेंगे, ठीक है
सर वो SFBM का भी बताना था सर, टैंकर कंटेनर और उसका सर। हाँ, आई विल डू दैट टुमारो, कल करता हूँ उसको मैं, आई डू दैट। ओके, चलो सी यू, बाय। Okay. थैंक यू सर। बाय। ओके सर, थैंक यू। Thank you, sir. ओके सर, थैंक यू। बाय।